ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وہ روز روز مرنے کا قصہ ہوا تمام، وہ روز دل کو چیرتی وحشت تمام شد، جو لوگ لگاتے تھے اداروں کو دھمکیاں، سب ایسے عناصر کی سیاست تمام شد۔ بے گناہ لوگوں کو اٹھاؤں گا میں، تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، لگ گئی حکومت اپنے کام پر، پیٹرول بم گرا دیا عوام پر۔ بات یہی ہے آخری، اب تو صرف سارے وہاں سے چاہتے رہے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آئے ہائے، ادھر سے زیادہ اچھا کوئی لگتا ہے، آج صبح سارے سو کے آئے ہیں بچے۔ آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ تانوں کسی نے دسیا میں سرتال سی؟ تو کہڑا فروٹ لے کے آئے تیرے لیے؟ فروٹ نہیں لے کے آیا، گرما تے لے کے آئے نے نا۔ یار سر آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ہمیشہ میں کی تو طرح۔ روز ہی لگتا ہوں، آج آپ کسی اور کی تعریف کریں۔ ہینا تو کیا بات ہے ماشاءاللہ، آج بھی پیاری نہیں لگ رہی ہے۔ نہیں یہ آپ کسی جیلسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ جامنی کلر آپ پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ کہتے کہ تو لگتا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے میری۔ نہیں لیکن آج ماشاءاللہ ہینا تو بہت پیاری لڑکی ہے، جی اور لڑکیوں کی ویسے بھی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تھینک یو۔ کیونکہ انہاں چ نخرے بہت ہوندے نے۔ وہ کیسے؟ دو ہی مشغلے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، وہ کیا؟ ڈرامے دیکھنا اور ڈرامے کرنا۔ بھئی انہیں نخرے ہوندے نے کڑیاں چ، ماشاءاللہ ساڑیاں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، معاف کر دینا بیٹا۔ انہیں نخرے ہوندے نے کالج دے وچ جڑیاں مینوں کڑیاں کہندیاں نے اپنی شکل ویکھی ہے، اج انہاں دے خامند ویکھدا دل نوں اتنا سکون ہوندا نا۔ کیوں جی؟ یقین کرو میری منگیتر میں انہوں فون کیتا، میں کہا کہاں ہو؟ کہندی پیزا کھا رہی ہوں، مینوں غصہ چڑھیا، میں کہا کس کے ساتھ؟ کہندی کیچپ کے ساتھ۔ آپ کی منگیتر؟ ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی ایج نہیں ہے تو منگنی کیسے ہوگی، ہے نا؟ میرے خیال میں شادی کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے سر، جو دل کی بات ایسے سمجھتی ہو جیسے میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لینگویج سمجھتا ہے۔ ارے واہ، لیکن ہینا بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھی۔ اچھا جی۔ میں نے کہندی یہ شادی کے جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ میں کہا آسمانوں پہ۔ کہندی میں پھر دردی نوں دے آئی جا۔ آج کل تو منڈیاں دا مقابلہ کر رہی ہیں کڑیاں ساریاں سر، اچھا جی۔ لیکن جنہ مرضی کڑیاں منڈیاں دا مقابلہ کر لو تسی، روٹی کھا کے تسی پردے نہ ہاتھ نہیں صاف کر سکتی۔ اچھا جی، بالکل بات ہے یہ۔ بیڈ مینرز ہیں، لیکن پیاری لگ رہی ہے نا۔ تھینک یو۔ کون سا میک اپ آج لگایا ہے؟ برانڈیڈ ہی ہے، ظاہری بات ہے۔ کون سا برانڈڈ؟ 30 روپے دیاں 30 سرخیاں آ جاندیاں۔ یار میں بڑی ٹینشن جب میری بیگم رات دی بولن نہیں رہی، اوہو۔ وہ لیٹ گئی سی، مینوں اچھا۔ کہندی لپسٹک پھڑا دے، میں غلطی نال ہی پھڑاتی۔ لیکن جو بھی یہ پیار محبت ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج پیار محبت، آپ کو بہت نظر آئے گا کیونکہ ماحول ہے آج کل سیاسی، اور خاص طور پہ ہمارے آج کا پروگرام بھی سیاسی ہونے والا ہے۔ دو مختلف پارٹی سے ہم نے دو لوگ بلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA بھاول نگر سے، آپ سب کی تعلیم ہے، جناب عالمداد لارے کا۔ اور لالکا صاحب کے ساتھ ہماری دوسری مہمان جو ہے، ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ریسنٹلی ہیڈ سینٹ الیکشن کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ ہار بھی گئیں، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ الیکشن ہار جاؤں گی، اور وہی ہوا۔ ایسا کیوں ہوا اور ان کو کیوں یقین تھا، انہی سے جانتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں محترمہ کنول شوذب۔ حاضر کا ایک شعر ہے، ارے واہ، جی جی، کہ ووٹوں کے زمانے آ گئے ہیں، واہ ووٹوں کے زمانے آ گئے ہیں، ووٹر ہیں کہ سٹ پٹا گئے ہیں، پہلا مسئلہ کیا سوچتے ہیں کہ بٹ بٹا گئی ہیں، کیونکہ آج مذاکرات میں لالکا صاحب اور کمل جی آ گئی۔ واہ، کیا سر میرا شعر بھی آج نون لیگ کے لیے۔ جی جی، آپ کا تو ظاہر ہے ہو ان گئی۔ رنگینیوں سے مذاکرات کا بیلا سجتا ہے، عمران خان نے ایسا حال کر دیا ہے اب تو دودھ والا بھی نیب والا لگتا ہے۔
पहले तो ये बताइए लालिका साहब, क्या ये बात सच है कि ऐसे आलम हो चुका है कि हर किसी पर शक होता है देखते हुए? Political victimization might not be the right word, but सियासत के ये नशेबो फराज हैं. ये नशेबो फराज है. जो सियासतदान इन चीजों से घबरा जाए इज नॉट अ कंप्लीट पॉलिटिशियन. अच्छा, तो और जो घबरा के लोगों को इकट्ठा करके जलसे करे और कहे मुझे क्यों निकाला, वो जलसा करना किसका राइट नहीं है जी? हर बंदे का एक अपना मौकफ है. नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये घबराहट का निशान है या नहीं है. नहीं, घबराहट का निशान तो नहीं है ना, ये तो क्लियर हो चुका हुआ है. तो यानी घबराहट का निशान तब होता जब केपीके में जो पेशावर में जलसा हुआ वो इमरान खान के जलसों से बड़ा ना होता. ना होता ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ. तुझे तो आए नहीं खान. ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ. मगर वहां बिरयानी का क्या काम, वहां पे तो वैसे आपको दुम्बा खाना चाहिए था. ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੁੰਬਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ. मैडम आप सुनाएं, क्या हालचाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश हैं. बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। इनके साथ तो चले एक मुस्तकिल आजकल थोड़ा सा मसला चल रहा है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में तो खुशी भी है और गम भी है, तो कभी खुशी कभी गम कैसी चल रही है? माशाल्लाह हैप्पी ने वलीमा खा के आए हैं. खुशी का एहसास ही तभी होता है जब गम से गुजरा हो इंसान। आहा, तो ये बताए आखिरी गम कौन सा था पीटीआई को? आखिरी गम लोधरा. अच्छा, वो कह रहे हैं लोधड़ा, आप बताइए. नहीं, हमारा वो गम नहीं था, लोगों की खुशी थी, तो इसलिए इसमें हमारी भी खुशी है। लोगों की खुशी थी कि इनको जिता दिया. जब जी 10 साल हो जाए हुकूमत को, लगातार 20वां साल हो वैसे पंजाब में, और लोगों के घरों के आगे नाली भी पक्की ना हो, और अगर इलेक्शन के, और वो भी बाय इलेक्शन की वजह से, जनरल इलेक्शन से 3 महीने पहले हुकूमत फोकस कर जाए इस चक्कर में कि चलो इस इलाके के लोगों को हम खुश करते हैं, वोट मिल जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी कि अगर पीटीआई की वजह से वो गरीब आवाम जिनको तरसाया जा रहा था उनको कुछ मिल गया। ये तो बड़ी, उनको सड़कें मिल गई, उनको वहां पे 100 वाट वाले जो ट्रांसफार्मर है उनकी जगह 200 वाले मिल गए, यूसी लेवल पे जाके भी तरक्याती काम हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात तो है। कंवल जी, इस हिसाब से तो अगर इन्होंने यही जो आपने डेफिनेशन दी है हार की, कि इस वजह से हारे कि इन लोगों ने काम करा दिए, तो इस हिसाब से तो अगर ये 2018 का इलेक्शन सारा ले जाएंगे पंजाब के अंदर। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात में और जनरल इलेक्शन का जो एक हवा चलती है ना, उसमें फर्क होता है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो भी ज़िमनी इंतखाब फुल जीतते थे। सॉरी टू कट यू, इंटरेस्टिंगली खान साहब ने जो अभी रिसेंटली कहा उसमें उन्होंने एक बड़ी प्रोमिनेंट वजह ये बताई कि तरीन साहब खुद भी माने कि वो ज्यादा विजिट नहीं किया उन्होंने पिछले 2 साल में लोधरा को। बिल्कुल ठीक है उन्होंने, इसलिए कि 2015 में वो इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद तो उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी भी थे, पनामा केस स्टार्ट हो गया, हाँ जी। तो उनको इस्लामाबाद में मौजूद रहना फिर तो पड़ता था। आप उनकी गलियों और नालियों पे ना डालें ना, फिर तो अपना भी मसला निकल आया। दोनों चीजें हैं ना जी, दोनों फैक्टर्स हैं। एक ये होता है कि जिस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी होती है, अगर अवाम उसके अगेंस्ट जाए तो उनको नुकसान होता है, क्योंकि जाहिर है जो अपोजिशन में बैठे हैं वो सिर्फ इस वक्त उन्हें नारे ही बेच सकते हैं, प्रैक्टिकली फंड्स तो सारे गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और जब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड्स दे दिए जाएं तो लोगों का भला हो जाता है। लोग बड़े इंटेलिजेंट है, 3 महीने के लिए अगर उन्होंने एक डिसीजन किया है तो वी रिस्पेक्ट देम। अच्छा, आपके ख्याल में सिर्फ 3 महीने का डिसीजन है ये? बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद सर, असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 3 महीने के लिए आपने फिर पीर साहब कितने पैसे लगवा दिए बेचारे। प्रॉब्लम इज जो वोटर है उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले दौर में जब हमारे बुजुर्ग जो थे वो इलेक्शन लड़ते थे तो गांव का एक जो सरकर्दा नंबरदार चौधरी वो जो फैसला करता था पूरा गांव उस पे टिक जाता था। अब हर गांव क्या, हर घर में हर फर्द का उसकी अपनी चॉइस है कि मैंने किसको वोट देना है किसको नहीं। सेकेंडली, अब वोटर डिमांड करता है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं मेरा उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, उसके बगैर वो सेटिस्फाई नहीं होता। मगर वो तो हमने देखा, वो जो नौजवान हैं अली तरीन, उन्होंने बेचारे ने बड़ा एक ऑन द ग्राउंड मुझे लगता है जाके काफी वो किया, वो बेचारे बहुत घुल मिल गए। आई गेस लेट शायद हो गए, एक और बात हो सकती है, मगर वो यही स्ट्रैटेजी अपना रहे थे जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ही वाज ट्राइंग टू बी अमंग्स्ट द पीपल। लेकिन उनके पास डेवलपमेंट फंड्स नहीं थे, लोग समझदार हैं। जनरल उतने तो इलेक्शन में पैसे आप उनके अब्बू के देखिएगा, पास वो कहते लगा देते। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगना चाहिए। अच्छा, अब्बू वाला नहीं Development fund। लगाना। अब्बू तो उनके लगा रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम किया हुआ है। जो हुकूमत कर सकती है ना, वो कोई
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं कर तो सकता। फिर लोग क्यों आपको वोट देंगे? हुकूमत ने तो कर दिया उनके लिए। जी अगली हुकूमत जो आ रही है इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में आप ये देखिए। आप अपनी जो आपकी थ्योरी है ना उसको रिफ्यूट कर रही हैं मैडम, कि एक आप कह रही है कि हुकूमत ने जब पैसे लगा दिए तो फिर कैसे दोबारा आएंगे? देखिए ज़िमनी इंतखाब के डायनामिक्स फर्क होते हैं, जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स फर्क होते हैं। मैंने पहले अच्छा भी मुझे यही ये बताएं, आप सब छोड़े, आप ये बताएं कि कैसा लगता है अब वो नहीं है जहांगीर तरीन साहब आप लोगों की असेंबली के अंदर? ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਆਪ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। अभी तक जहाज अवेलेबल है? मैं तो जी जहाज पहले भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो नहीं आप तो नहीं, जाहिर बात है, वो तो खान साहब के लिए था, मगर वो अभी मिल जाता है वैसे? आई डोंट नो, पहले भी मेरे ख्याल में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था कि प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जितना पहले यूज हो रहा था उतना भी होता है। मीडिया ने कहा जी, मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट किया। नहीं, मीडिया ने तो हमजा शहबाज का भी हेलीकॉप्टर बहुत हाईलाइट किया था। वो भी दिखाया था जो पेशावर में गुलपाशी करते हुए हेलीकॉप्टर आगे आगे। वो तो देखे ना, वो उनके फैंस थे नून लीग के जिन्होंने स्पॉन्सर किया, वो जिसने फूल फेंके। आप लोगों के बंदे अगर नहीं फेंक रहे फूल तो इनमें इनका क्या कसूर है? देखिए वो तो फैन क्लब अपना अपना। ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੰਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। लालका साहब कितने पैसे लगते हैं इलेक्शन पे? डिपेंड करता है कहाँ का इलेक्शन है। आप फर्ज करें कि आपके इलाके में अगर इलेक्शन हो रहा, भावल नगर के अंदर कितने पैसे लगते हैं इलेक्शन पे? आपने लड़ना है? कोशिश डिपेंड करता है आपके जवाब के ऊपर। ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं मगर हो सकता है ना। बस लग ही जाते हैं जी। कितने सर, कोई एक नंबर ही बता दें, जहन तो बने फिर। एक तो ये चीज क्लियर है जी कि पॉलिटिक्स जो है दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंसेस। अच्छा जी, पैसों के बगैर, ये एक शुक्र है कि एक क्लियर चीज तो होगी कि फाइनेंशियल के बगैर क्लियर है, पॉलिटिक्स नहीं क्लियर है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे बताएं कि हम देहाती लोगों का डेरा, जिस डेरे पे दिन का हजार बंदा आना है, उनका चाय पानी खाना, क्या उस पे पैसे नहीं लगते? बिल्कुल, वो फाइनेंसेस के बगैर हो सकता है? लीड आपका इलेक्शन के अंदर लोगों को मोबिलाइज करना, गाड़ियां, उनका बिल्कुल। फ्यूल, बैनर्स, फ्लेक्सेस, कैंप ऑफिस चलाना। 15 लाख की तो बात नहीं है, ये कोई नहीं कर सकता 15 लाख में ना। नहीं। ये तो क्लियर होगा। अभी आप गांव की बात करें, अभी अगर हम कहीं लाहौर वहौर आ जाएं, जहां पे कहीं जिस तरह अलीम खान का और सादिक साहब का हुआ था, स्पीकर साहब का इलेक्शन, वो तो एक इतना खतरनाक इलेक्शन हो जाता है इस बड़े शहर के अंदर कि आप क्या ही सोचेंगे कितने ही। नहीं 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਪਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਾਰ ਖੋਤਾ अच्छा नहीं बात सुन, पकिया। अगर अब गलती से एक बार खा लिया हमने तो आप याद ही कराते रहेंगे। वैसे समझ जी, बात है जो भी बात की है लालका ने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दे चुकी हैं दैट यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू विन द सेनेट इलेक्शन। ये इज इट काइंड ऑफ रिलेटेड टू व्हाट ही सेड कि ये सियासत जो है अब पैसे के बगैर वाला काम नहीं है? नहीं जी, मुझसे पहले भी पूछा गया कि आपने सेनेट की टिकट के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो मैंने सेनेट की टिकट के पैसे अदा किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 20,000 रुपए। ठीक है। 300 रुपए तस्वीरों वालों को दिया क्योंकि अर्जेंट बनवाई थी, और 100 रुपया दिया जी फोटोकॉपियर को। दैट्स इट। ਬਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, और बताओ कब तक देखें हर सहूलत से दूरी। उससे पूछो होता है क्या पंखा ना चलने का गम, नींद मयसर जिसे न आए दिन भर करके मजदूरी। बातें जो करते हो उनको पहनाओ अमली जामा, हमको फैक्ट्स एंड फिगर बता के करो न यूं खाना पूरी। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना वो तो अनश्योर ही लगता है। हाँ। मगर हमने तो लड़ना है। अच्छा, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ।